स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रामायण और महाभारत की बात करूं, इनके संदर्भ में सर क्या ICCR काम कर रही है? We have changed our religion but not our culture. भारतीय भाषाओं को विश्व मान्यता मिलना, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता मिलना, ये हमारा एजेंडा होना ही चाहिए। क्या लाचित बरफुकान के बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। देश के सारे छात्रों को क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए? मान लीजिए 3000 छात्रों में से 1200 सिलेक्ट हो गए, तो जो 1800 बचते हैं को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पद्धति से अगर हम समाहित कर सकेंगे, अगर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति नहीं आती तो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि इसका भी कोई एक विकल्प ढूंढना चाहिए। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल सके। कहते हैं खरा सोना तब कर ही निकलता है। ऐसे ही एक खरे व्यक्तित्व के साथ हम आए हैं आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। और आज जिस शख्स का इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं, उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के, which is one of the biggest autonomous bodies of government of India. Not only that, from 2014 till 2020, he was the national vice president of the Bharatiya Janata Party. From 2016, he represented Maharashtra in the upper house, that is Rajya Sabha. So we are very fortunate to have Dr. Vinay Sahasrabudhe. Namaskar, sir. Welcome to Study IQ IAS. Thank you very much. You represent a unique blend of academician and a politician as well. बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि आपकी एक एकेडमिक पृष्ठभूमि भी रही है, और साथ ही साथ आप ये भी लिखते हैं अपने बारे में, जो पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा, दैट यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑफ डेमोक्रेसी एंड बाय एलिवेशन यू हैव बिकम अ पार्लियामेंटेरियन. So, sir, you are now the president of Indian Council for Cultural Relations, which was once upon a time headed by Prime Minister Vajpayee. Sir, please tell us more about this institution and about yourself also. See, Indian Council for Cultural Relations, I would say, is the government of India's apparatus, kind of an institutional apparatus, I would say, to strengthen what they call as our soft power. There are debates about whether we should use the term soft power or not, but I would say, since the global community recognizes it as soft power, I'll use that term. One can also describe it as India's global cultural relations, for that matter. It is one and the same. And this was established in the 50s. Maulana Abul Kalam Azad was the founder president. And thereafter, it was Minister of Education at that point of time. Whosoever shouldered that responsibility was kind of ex officio president of ICCR. In the 70s, the entire institution was handed over to the Ministry of External Affairs, because there came a kind of a focused attention to the subjects around the concept of soft power, even though the term was not there at that point of time. तो उसके बाद देश के जितने सारे विदेश मंत्री हुए, वो इस संस्था के पदेन अध्यक्ष बनते रहे। कुछ समय अन्य लोग भी हुए, जैसे वसंत साठे जी कुछ अवधि के लिए हमारे अध्यक्ष थे। बाद में देश के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते गए, वो एक क्रम चला। उसके बाद श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, बाद में 9 साल डॉक्टर करण सिंह, उसके बाद डॉक्टर लोकेश चंद्र, और 2018 के जनवरी से मैं इसकी अध्यक्षता कर रहा हूँ। और इसके उद्देश्यों के बारे में अगर कहना है तो बेसिकली we are promoting the understanding of Indian culture, because as it happens globally, India is loved by perhaps one and all. I haven't come across a country where India is hated. Everybody loves India because India is very colorful, very attractive, very vibrant. But goodwill about India, although pretty much in abundance everywhere, important but not enough. We need to translate this goodwill into an understanding of the idea of India. और हम मानते हैं कि ये हमारा मिशन है, और उस दृष्टि से हम कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
और कुल मिलाकर जिसको हम नॉलेज एरिया कहेंगे, ज्ञान का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काम करते हैं। सर कल्चर के प्रमोशन से ही हमारा नेक्स्ट सवाल है। आपने एक बात बखूबी कही कि इंडिया को ऐसा कोई भी नहीं है जो हेट करता हो, और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया के कल्चर को और बढ़ाने का। इसी क्रम में एक सवाल ये उठता है सर कि भारत की जो एपिक्स हैं, जो हमारी धर्म से भी जुड़ी हैं और संस्कृति से भी जुड़ी हैं, जैसे अगर मैं विश्लेषतः रामायण और महाभारत की बात करूं, इनके संदर्भ में सर क्या आईसीसीआर काम कर रही है इन्हें भारत का सिंबल बनाने, वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, क्योंकि भारत में तो ये काफ़ी प्रचलित हैं ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। जी, ज़रूर कर रहे हैं। एक दृष्टि से आवर एपिक्स आर such that you cannot separate them from the very idea of India. भारत की परिकल्पना से रामायण महाभारत को हम अलग नहीं कर सकते, और इसलिए रामायण महाभारत के बारे में भी हम निश्चित रूप में काम करते हैं। एक तो मुझे कई बार लगता है कि जैसे विभिन्न देशों के समूह होते हैं, बिम्स्टेक है या फिर सार्क है या और कुछ है, वैसा आवश्यक है कि हम एक रामायण महाभारत कंट्रीज का भी एक समूह बनाएं। इतनी रामायण महाभारत की जो प्रभाव शक्ति है वो इतनी ताकतवर है। दुनिया में कई देशों में रामायण महाभारत का प्रभाव है, और बीते 6-7 सालों में सिंस 2015 we have been organizing an international Ramayana festival. This year also it is going to happen, and several countries send their troops, which are very colorful and very attractively they present an episode or two of the epic of Ramayana. But in the process, we also try to do some new experiments. We support, for example, Ramayana conferences in several parts of the globe. हमारे यहाँ जबलपुर में एक रामायण कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। और रामायण के बारे में जब हम निमंत्रण भेजते हैं, 3-4 साल पहले का किस्सा है कि जब हमने ब्रुनोई को भी बुला लिया। अभी इंडोनेशिया, मलेशिया में तो गैर इस्लामिक लोग भी रहते हैं, बट ब्रुनई इज 100% वर्शिपर्स ऑफ इस्लाम, followers of Islam. So we were wondering whether they will send a group or not, but they sent, and it was a wonderful presentation. के बाद जब चर्चा हुई तो one of our officials expressed his apprehension and also pleasure that you have sent the group, but we were wondering whether you will or you will not. The head of the Brunei cultural team told him in no uncertain terms that, boss, you are making a mistake, because we have changed our religion but not our culture. So this is the strength of our epics. And Southeast Asia is looking towards. Yes, of course. And not just Southeast Asia, other countries also. I mean, Ramayana Mahabharata is something which is read, and not only read. अभी मैं आपको बताऊं, क्रोएशिया में एक इंडियन एपिक्स पर कॉन्फ्रेंस होता रहता है, दुब्रोनिक कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन एपिक्स एंड पुराणास। अभी आने वाले 14 अगस्त से ये 4 दिन को कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आईसीसीआर को निमंत्रण है। तो हमारे महाकाव्यों की जो शक्ति है और उनका जो जनमानस पर दबदबा है विश्व भर में, उसका हमें ही कई बार मुझे लगता है शायद आकलन नहीं है। सर इसी से काव्य से ही भाषा भी निकल रही, और भाषा से जुड़ी हुई, लैंग्वेज से जुड़ी हुई सॉफ्ट पावर सिंबॉलिज्म और कुछ शायद नहीं होगी। 1977 में सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही यूनाइटेड नेशंस में हिंदी कह रहे थे या हिंदी में संबोधन दे रहे थे। सर आपको लगता है कि इंडियन लैंग्वेजेस का प्रमोशन अभी भी एक अनफिनिश्ड टास्क है एट इंटरनेशनल लेवल? Yes, of course, and we need to pay attention to that, because cultures remain in existence or they sustain only through languages. और भाषा अगर मृतवत हो जाती है तो संस्कृति खतरे में आती है, क्योंकि भाषा संस्कृति की वाहक है। लैंग्वेजेस आर द व्हीकल्स। तो इसलिए भारतीय भाषाओं को विश्व मान्यता मिलना, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता मिलना, ये हमारा एजेंडा होना ही चाहिए। और आपने अटल जी का जिक्र किया, आई एम रियली हैप्पी टू मेंशन ओवर हियर दैट सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी has been making it a point everywhere to speak in Hindi. In Hindi, that's true. कहीं भी जाए प्रधानमंत्री जी हिंदी में बात करते,
और हिंदी सोवियत रूस में पुराने, जिसको आज हम रशिया कहते हैं, और बाकी देशों में उस भूभाग के हिंदी का बड़ा प्रचलन है। हिंदी स्कूल्स हैं, हिंदी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। सो व्हेन आई हैड बीन टू मॉस्को लास्ट ईयर, व्हेन वी वर इंटरैक्टिंग विथ some Hindi teachers over there, heads of departments in the Moscow University, a 70-year-old very senior academic in Hindi, उन्होंने हमें कहा कि जाकर आप प्रधानमंत्री जी को हमारा संदेशा दीजिए कि हम उनके प्रति आभारी हैं। मैंने कहा जरूर देंगे, मगर विशेष कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो रूस में आकर भी हिंदी में बात करते हैं। अब तक के सारे प्रधानमंत्री लगभग अंग्रेजी में बोलते थे, जब वो हिंदी में बोलते हैं तो रूसी हिंदी अनुवादकों को काम मिल गया, नहीं तो हमें कोई पूछता नहीं था। अच्छा। तो ये जरूरी है, ये होना जरूरी है। और मैं तो कहूँगा कि नॉट जस्ट हिंदी ऑफ कोर्स, but then Tamil, Marathi, Gujarati, Bengali, all these languages perhaps require some more efforts from our side for their promotion globally. Sir, coming to the theme of education, since you were in Rajya Sabha, and while you were in Rajya Sabha, you drafted a very important policy for Government of India, and I'm talking about new education policy. आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सर, ब्रॉड तरीके से अगर आप हमें समझा सके कि गवर्नमेंट की एम्स क्या रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, और एक भावी एस्पायरिंग स्टूडेंट को ये कैसे हेल्प करता है? देखिए, मैं थोड़ा सा विस्तृत अगर इसका जवाब दूं तो हमें ये ध्यान में आना, मैं मानता हूं कि कोई मुश्किल नहीं है कि स्वाधीनता के बाद हम स्वाधीन बन गए, स्वतंत्र बन गए, तो हमारी स्वभाषा, स्वभूषा, स्वदेश, इसका प्रभाव निर्माण होना चाहिए था। मगर लोग बोलने लगे कि अंग्रेज तो चला गया, अंग्रेजियत अभी भी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वो जो कलेवर था उसमें कोई परिवर्तन ही किया नहीं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल। इवन टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या अंग्रेजी बोलने वाले को हम अधिक प्रतिष्ठा नहीं देते? ये मानसिकता अगर है, आज भी जीवित है, तो इसको समाप्त करना किसका काम है? मैं कोई अंग्रेजी विरोधक नहीं हूं। इंग्लिश भी एक विश्व भाषा है और एक दृष्टि से भारत में कई लोग बोलते हैं, हम उनका सम्मान ही करेंगे। मगर हमारी भाषा हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? तो हमारी जैसे मातृभूमि महत्वपूर्ण है, हमारी माताएं महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को बनाती है वो, वैसे ही अपनी मातृभाषा बनाती है। तो इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें इससे जुड़ती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दृष्टिकोण था, वो मुख्य रूप में ये दृष्टिकोण था कि इस मिट्टी से या मिट्टी की सुगंध से परिलक्षित ऐसी नीति हमें बनानी है, जिसको इस मिट्टी का सुगंध है। हमें वो विदेश वाला नहीं चाहिए। और आज भी कई मायनों में लगता है हमें कि वो छाया से हम पूर्ण रूपेण बाहर नहीं आए हैं, और इसलिए वो लाना, फिर देश के संस्कृति और देश के इतिहास के बारे में सही आकलन बनाना, इतिहास के जो विभिन्न कालखंड होते हैं, उन सभी कालखंडों का जो महत्व है उसको सुनिश्चित करना, और छात्र को एक दृष्टि से अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, इनके बारे में एक लेजिटिमेट सेंस ऑफ प्राइड उसके अंदर निर्माण हो, ये उसके उद्देश्य पत्रिका में स्पष्टता से लिखा है। और दो बातों पर मैं बल दूंगा। एक, शिक्षक का महत्व। हमारा जो अध्यापक वर्ग है, उसकी वरीयता, उसका महत्व, उसका कुल मिलाकर शिक्षा की प्रक्रिया में योगदान, इसको सबसे पहले मैं मानता हूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रिकॉग्नाइज किया है। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक मुक्तता होनी चाहिए। हमारे यहाँ था कि अगर आप आर्ट्स में जाओगे तो आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप भरतनाट्यम नहीं पढ़ सकते। ये क्यों? ये फजूल था, बेकार का था। अभी सरकार ने इस तरीके की नाकाबंदी जो थी शिक्षा के क्षेत्र में, उसको समाप्त कर दिया है। आज मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, कल हमें बायोटेक्नोलॉजी में काम करने वाला छात्र अपने क्रेडिट्स के हिसाब से या अपने इलेक्टिव्स के हिसाब से भरतनाट्यम भी सीखेगा या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सीखेगा। बिल्कुल सही बात है सर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच काफ़ी आई है। बट सर, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है विथ रिस्पेक्ट टू, अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश के एजुकेशन को शेप करती है, लेकिन जैसे कुछ संस्थाएं हैं जैसे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी अपने किताबों में समय समय से कुछ चेंज करती है।
एनसीईआरटी ज़्यादातर सेकेंडरी या प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यूपीएससी के स्टूडेंट एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं। एंड जब हमें ये पता चलता है कि उसके सिलेबस में भी चेंज हो रहा है या कभी कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए या हटाए गए, तो क्या आपको लगता है कि एक समय आ चुका है या इस पद्धति की ज़रूरत है कि वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए, या हर राज्य के जैसे आपने ऐतिहासिक वर्णन होने चाहिए? अगर महाराष्ट्र का बच्चा शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ेगा तो शायद उसे एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा इतिहास। आपको लगता है कि देयर शुड बी अ नेशनल फ्रेमवर्क Yes, basis yes, on of course, syllabus? and there is a national There framework. is a Every time we have to have that kind of a national framework जो अभी बना है और उसके बिल्कुल। अनुरूप ही एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकें बन रही है। हम्म, और एनसीईआरटी एक दृष्टि से वन नेशन वन सिलेबस का ही नमूना है। राइट। केवल इतना ही है कि हम जिस पद्धति की संघराज्यात्मक व्यवस्था में प्रविष्ट है, फेडरल सिस्टम में, तो हम किसी राज्य पर अपना थोपना नहीं चाहते, वो सही है। मगर इसमें जो मार्गदर्शक सूत्र बनते हैं, जैसे हमारे पूरे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा लाडला और प्यारा प्रोजेक्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। राइट। उसी उसी सूत्र को इसमें अंतर्निहित है, इसमें समाहित किया गया है। अभी मैं लाचित बरफुकान का उदाहरण देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आसाम के लोग उनकी तुलना करते हैं और उन्हीं के कारण, उनके पराक्रम और शौर्य के कारण आसाम में परचक्र को थोपा गया। क्या लाचित बरफुकान के बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। देश के सारे छात्रों को क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बसवण्णा, बसवेश्वर, हमारे कर्नाटक में विशेष रूप में जिनका प्रभाव रहा, उन्होंने जिस पद्धति से अनुभव मंडपम की कल्पना बताई और जनतंत्र को जीवंत किया, उन्होंने जीवंत रखा, अक्षुण्ण रखा, क्या इसका हमें कभी आकलन होता है? जब हम 7वीं कक्षा में थे तब मुझे अभी भी याद है कि नाइल नदी उत्तर से दक्षिण बहती है या पूर्व से पश्चिम बहती है, ये हमें काइंड ऑफ मुखोद्गत करना पड़ा। और हमें पता नहीं कि ब्रह्मपुत्र का प्रवाह कैसा चलता है। बिल्कुल। हमें सोचना पड़ता था कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, और हमें पता नहीं कि नागालैंड की राजधानी क्या है, या मणिपुर ये शहर है नागपुर और जबलपुर जैसा, या एक राज्य का नाम है। तो हमारे देश की जो वास्तविकता है उससे ही हम अनभिज्ञ पलते बढ़ते गए उसी पद्धति से, जिसके कारण आज ये स्थिति एक विकट संकट एक दृष्टि से मैं समझता हूं कि आ गया है। इस संकट का सामना करने के लिए पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन चाहिए था वो इसमें किया गया है, आगे चलकर भी होगा। और अन्य राज्य भी हम चाहेंगे कि इसको एक नमूना मानते हुए, एक आइडियल, एक मॉडल पाठ्यक्रम मानते हुए इसका अनुसरण करे और उसी पद्धति से करे, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है वो सफलतापूर्वक हम साधने की दिशा में आगे बढ़ पाए। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपसे पूछूं, सर, ऑनलाइन एजुकेशन और स्टार्टअप इंडस्ट्री आज भारत में बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा पर बढ़े हुए हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में ही बढ़े हुए हैं। क्या सरकार इनको यूज़ करने के लिए या इनको शिक्षा बढ़ाने के लिए सोच रही है, या उनका यूज़ करने के लिए, ताकि रूरल इंडिया तक जो गैप है शिक्षा नीति में उसको ब्रिज कर सकती हैं, या स्टार्टअप्स का यूज़ सरकार? निश्चित रूप में नई शिक्षा नीति में ये जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उसके बारे में काफ़ी बल है। देखिए, इस विषय में हमारे देश में एक प्रयास हुआ था जब 10+2+3 का फॉर्मेट आया था इन दी 60s, लेट 60s। तो वो फॉर्मेट लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? उस समय एक शब्दावली का प्रयोग होता था, वोकेशनल एजुकेशन, राइट, और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यावसायिकता के साथ संबंध जोड़ना। तो सोचा ये गया कि 10वीं तक सारे लोग एक ही पद्धति का शिक्षा एक ही पद्धति की पाएंगे। 11वीं 12वीं में अगर जिसको तत्काल कमाना जरूरी है उसके लिए व्यवसाय की शिक्षा उपलब्ध होगी, बाकी लोग अपना अपना करेंगे। मगर ये हुआ नहीं। मतलब ये हुआ, मगर इसके कारण जो महाविद्यालयों में जाने वाला, जिसको हम कहेंगे कि मैड रश, उसको थोपने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ 10+2+3 was to prevent students from going to colleges if they don't require, because if they have the skill set through vocational education at a particular level in their class 12 education, then they can immediately go and have some opportunities in the job market. That was the idea, but it didn't work. People still continued to
go to the colleges, register themselves for a undergraduate course. ये क्यों हुआ? क्योंकि व्यक्ति को केवल शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से कुशलता और कुशलता के आधार पर पैसा पर्याप्त नहीं होता, प्रतिष्ठा जरूरी है। आज डिग्री लेवल तक का एजुकेशन मैट्रिकुलेट जो पुराने जमाने में था उस लेवल तक आ गया है। तो आपको डिग्री के बारे में जो भी धारणाएं बनी है, डिग्री को एक कभी-कभी अवास्तविक प्रतिष्ठा भी दी गई है, मगर ये वास्तविकता है समाज में। तो आपको डिग्री तक लोगों को ले जाना, ये जो ललक रहती है, उसका समाधान करना पड़ेगा। और इसलिए आज मैं मानता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छे तरीके से बल देने की ज़रूरत है, जिसको नई शिक्षा नीति ने समझा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो फ्रेमवर्क बना है, उसमें भी इसका अंतर्भाव हो चुका है। सर, ब्यूरोक्रेसी पे अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि मोदी सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेसी एक नई तरीके से इवॉल्व कर रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है सर कि जो नए ब्यूरोक्रेट्स अब यंग रिक्रूट्स बन रहे हैं, क्या ये खुद मोदी सरकार के एम्स के ऊपर खड़े उतर पा रहे हैं क्या? आई बिलीव सो, बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। वैसे देखा जाए, मतलब काफी सुधारों की जरूरत है, मगर कम से कम सुधारों की दिशा में 4-5 कदम हम आगे बढ़े हैं। हमारे देश में जो अफसरशाही है, जो अफसर काम करते हैं, नौकरशाह है, इनको शिक्षा दीक्षा, आईएएस जैसी बड़ी कठिन मानी जाने वाली परीक्षा, ये सब होता है, ट्रेनिंग भी होता है। मगर एक जो माना जाता है कि एक आईएएस अफसर अभी सेक्रेटरी स्टील होगा और बाद में वो सेक्रेटरी कल्चर होगा, ये जो इसकी मर्यादा है, इसको हम कैसे लांघे? तो स्पेशलाइजेशन भी होना जरूरी है, मगर सबसे अहम बात है कि देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन ऑल अलोंग, कि हम क्यों आईएएस बने हैं? केवल एक सुरक्षित सरकारी नौकरी के लिए बने हैं या हमें कुछ करना है? इसलिए प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना से कर्मयोगी प्रशिक्षण अभियान भी शुरू हुआ है और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई है। मैं मानता हूं कि इसके कारण एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। हमारे अफसरों का अपने काम की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। वो कर्मचारी नहीं है, वो कर्मयोगी है, ये भावना उसके मन में आएगी और जनता के प्रति जो जवाबदेही है, वो उसके सारे आचरण में भी, व्यवहार में भी निश्चित रूप में झलकेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत बुनियादी सोच विकसित की है और धीरे 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 उसके परिणाम भी मिलेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस पद्धति से लैटरल एंट्री का प्रावधान किया है, तो किसी को भी ये लगने की जरूरत नहीं कि ये हमारी मोनोपोली है। जो इस तरीके का परीक्षा न देते हुए भी जिसका स्वागत किया जाएगा एक सोची समझी नीति के अंतर्गत, तो उसके साथ भी उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा। आज तो क्या है कि उस रूप में कंपटीशन है ही नहीं। वंस यू आर ए पार्ट ऑफ द सर्विस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ऑल अदर थिंग्स आर मोर और लेस नोशनल। तो सर, क्या ये हम कह सकते हैं कि एक जो छात्र शायद परीक्षा नहीं प्राप्त कर पाया या पार नहीं कर पाया हो, वो अपने फील्ड में आगे बढ़ता जाए, काम करता जाए, प्रवीण होता जाए और फिर बाद में हो सकता है बिल्कुल, वो सरकार में काम कर सकेगा? आज के जमाने में उसको ये उम्मीद रखने का पूरा अवसर है और संभावना है कि उसको लैटरल एंट्री के माध्यम से प्रशासन के क्षेत्र में प्रविष्ट होना संभव हो पाएगा। सर, एग्जाम से ही जुड़ी हुई चीज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भर्ती होना कितना मुश्किल है। एग्जाम प्रोसेस काफी टफ हो गया है, मोर देन द एग्जाम इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक बताऊं कि यूपीएससी ही पूरे 1 साल तक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 3 स्टेज तक में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। और एक स्टूडेंट उसको प्रिपेयर करने में ऑलमोस्ट साल भर लगाता है। तो 2 साल का हमारा अवधि रहता है और उसके बाद में आप देखते हैं कि या तो आप पास हुए या तो आप फेल हुए। कोशिश तो ये रहती है कि पास हो जाए। क्या सरकार इस बारे में सोच रही है सर कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट को आसान किया जाए rather देन द एग्जाम इटसेल्फ? क्योंकि एग्जाम को आसान करना तो हम नहीं मांग सकते, लेकिन प्रोसेस को क्या आसान करने की बात है सरकार के? मैं इसका जवाब विस्तार से देने के लिए शायद अपने आप को पात्र नहीं मानता, क्योंकि इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मगर होना क्या चाहिए, इस पर एक नागरिक के नाते कुछ टिप्पणी तो मैं कर ही सकता हूँ। और इन दिनों
सरकारी अधिकारियों के साथ भी संपर्क आता है, क्योंकि मैं एक संस्था का जी। अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। तो मुझे 3 चीज़ें इसमें बहुत आवश्यक लगती है। सबसे पहला है कि विशेषीकरण यानी स्पेशलाइज़ेशन। एक आईएएस ज़रूरी नहीं, आप आईएएस कल्चर करिए, आईएएस एजुकेशन करिए, आईएएस हेल्थ करिए। एकदम सारे गवर्नमेंट के अगर 32 विभाग है, तो 32 तरीके नहीं होने चाहिए, मगर उसको कुछ समूहों में बाँटा जा सकता है। मगर स्पेशलाइज़ेशन का अगर युग है, तो उसमें जनरलिस्ट अप्रोच बहुत लंबे अरसे तक हमारे काम में आएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। दूसरा है कि जो एक सुरक्षा प्रदत्त है इस व्यवस्था में, कि एक बार आप प्रविष्ट हो जाए, कोई आपको व्यवस्था से बाहर नहीं कर सकता। और उचित भी है एक मात्रा में, मगर जो अकाउंटेबिलिटी है, तो उसमें परफॉर्मेंस भी एक मायना रखता है। तो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन, आपका स्किल सेट जो भी है वो होना, आपकी विषय के आकलन की क्षमता, इनके आधार पर हर 5 साल में कहो या 6 साल में कहो, कोई एक परीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप आ गए तो आ ही गए, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि बीच-बीच में भी उनकी क्षमता का एक आकलन बनाना आवश्यक है। ज़रूरी नहीं कि आकलन में बहुत ही कम अंक आए तो उसको बाहर किया जाए, मगर किसी न किसी पद्धति से किया जा सकता है कि उसको और अवसर भी दिया जा सकता है, मगर पता तो चले, कोई कभी न कभी आईना तो दिखाए कि भैया आप यहाँ तक चलकर आए क्या है? ये अपार वगैरह सिस्टम होती है, मगर उसकी मर्यादाओं को भी मैं समझ रहा हूँ कि उससे बहुत कुछ निकलता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और तीसरा विषय मुझे लगता है कि हमारी जो कुल मिलाकर प्रशासन में आने वाले अधिकारियों के लिए जो परीक्षा पद्धति और उनको सर्विस में प्रविष्ट करने की रचना है, उसको अभी प्रदेशों के साथ हम काडर के रूप में जोड़ते ही हैं, वो तो सही है। मगर साथ ही साथ उनको थोड़ा अधिक एक्सपोज़र मिलना, थोड़ा रिसर्च का एलिमेंट उसमें आना, विदेश में क्या चल रहा है, ये भी उनके आकलन का हिस्सा बनना। जो प्रबंधन विज्ञान है, उसके साथ भी उनका कुछ संबंध कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पर आए, इसकी चिंता करना। इस तरीके के उसके कंटेंट में भी मैं मानता हूँ कि सुधारों की ज़रूरत है और गुंजाइश भी है। सर, आखिरी में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, भारत के करोड़ों युवा सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस भी देते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स। यूपीएससी तो अपनी एग्जाम हर साल कराता है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो 10-10 साल में या 5-5 साल में या 2-2 साल में एग्जाम्स करवाते हैं, और इससे हमारा वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स उस एग्जाम के पीछे रहता है। क्या केंद्र सरकार इस बारे में देख रही है या देख सकती है कि नेशनल और स्टेट लेवल पे ब्यूरोक्रेसी के लिए जो रिक्रूटमेंट हो, वो स्ट्रीमलाइन किया जाए, लाइक देखिए, यूपीएससी की तरह? सुधारों की एक लंबी कार्यसूची है, एजेंडा है, और मैं मानता हूँ कि सरकार निश्चित रूप में इसके प्रति चिंतित है, विषयों के प्रति वाकिफ़ है, जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में, और निश्चित रूप में हमारा जो मनुष्य शक्ति विकास पर्सोनेल का जो विभाग है, वो इसके बारे में कुछ सोच रहा है। मगर मैं एक विषय की ओर ज़रूर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। हमारा जो छात्र है, जो न केवल छात्र, उसका पूरा परिवार एक सपना देखने में 2, 3, 4 साल एक दृष्टि से खर्च करता है। ये एक इन्वेस्टमेंट है, सब तरीके की इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट है, उसकी अपनी प्रतिभा और बुद्धि की इन्वेस्टमेंट है, और स्वाभाविक रूप में एस्पिरेशन की इन्वेस्टमेंट है, व्हिच इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। पॉइंट इज़ कि आपको कोई एक फॉल बैक अरेंजमेंट की भी आवश्यकता है, और इसलिए 2 सुझाव हैं मेरे कि क्या सरकार ये सोच सकती है कि जो 2-3 हज़ार छात्र परीक्षा में एक स्तर तक आते हैं, इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं। और उनके बाद बाद जो नीचे बचते हैं, मान लीजिए 3,000 छात्रों में से 1200 सिलेक्ट हो गए, तो जो 1800 बचते हैं, उनको भी कहीं न कहीं किसी न किसी पद्धति से अगर हम समाहित कर सकेंगे, किसी न किसी स्तर में, जी। तो उनका जो निवेश है, वो शायद कुछ और काम में आ सकता है, या उनको कुछ
लेग अप अगर मिल सकता है कि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको ये काम थोड़ा सा आसानी से यहाँ पर प्रविष्ट होना आसान है, इस तरीके का कुछ। जी। तो ये अगर हम करेंगे तो ये एक तो मेरा पहला सुझाव है। और दूसरा सुझाव है कि हमारे राज्यों की जो परीक्षाएं होती है उसका भी एक नियत समय पत्रक हो, उसमें भी कुछ ऐसी रचना हो तो कि जिसके कारण अनिश्चितता का जो माहौल है वो थोड़ा सा समाप्त हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। और एक समय सीमा के बारे में भी उसके बारे में सोचा जाए कि कितने अटेम्प्ट्स किसने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। और जो हमारे अभिभावक हैं आज विशिष्ट रूप में ग्रामीण अंचलों में, महाराष्ट्र का अगर मैं उदाहरण लूँ तो माता-पिता बहुत मेहनत करके अपने पुत्र के या कन्या के सपनों के लिए काफ़ी जोखिम भी उठाते हैं, काफ़ी काम भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं। अगर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति नहीं आती, तो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि इसका भी कोई एक विकल्प ढूँढना चाहिए और उसके लिए भी कोई एक रचना होनी चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो इन समस्याओं का समाधान हो पाए। सर, आखिरी में आपसे एक सवाल आपके पृष्ठभूमि से मैं पूछना चाहूँगा। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और बहुत कम लोग जानते हैं कि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आप डायरेक्टर जनरल रहे हैं वहाँ पे और अभी भी वहाँ पर कार्यरत हैं और काफ़ी योगदान दिया हुआ है। अ, कुछ इस पृष्ठभूमि के बारे में अगर आप बता सकें हमें? देखिए, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी की जो परिकल्पना है, वो हमारे कुल मिलाकर जनतंत्र की जो आज की स्थिति है, उसके साथ उसका बहुत सगा संबंध है एक दृष्टि से। विश्व भर में जनतंत्र के बारे में उसकी स्वीकार्यता तो बढ़ रही है, क्योंकि बाकी पद्धतियों में से ये सबसे बेहतर पद्धत है, मगर उसकी परिणामकारकता जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही। मैं एक देश में गया था जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। वहाँ के लोगों को मैंने पूछा कि क्या पहला वाला सोवियत संघ वाला जो जीवन था आपका, उसकी गुणवत्ता अच्छी थी या आज की अच्छी है? तो बहुत आग्रह के बाद उन्होंने कहा कि खुलकर अगर बोलना है आपसे, तो पहले की गुणवत्ता अच्छी थी। अच्छा। ये क्यों उनको लगता है? बिकॉज़ देयर वाज़ सम एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। So naturally, in a situation like this, the acceptability, although it's something which you cannot deny, the efficacy of democracy is questionable or has remained questionable. और इसके कारण कई बार हम देखते हैं कि जनतांत्रिक देश भी कभी-कभी उस दिशा में जाते हैं जो जनतंत्र से विपरीत है। इसके जो अन्य-अन्य कारण हैं, उसमें एक कारण है, जनतंत्र आखिरकार किसके भरोसे चलता है? जनप्रतिनिधियों के, क्योंकि वो ही जनता के नुमाइंदे चुनकर आते हैं। बट व्हेन एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गेट्स इलेक्टेड, हिज पॉपुलैरिटी इज एस्टैब्लिश्ड, बट पॉपुलैरिटी इज वन थिंग एंड एबिलिटी टू गवर्न इज इट सेपरेट थिंग। करेक्ट। So what we do at Prabodhini is try to build the capacity of the elected representatives, current, present elected representatives and would be elected representatives, and they could be many. इनकी क्षमता विकास का काम हम करते हैं और इनको हम एक दृष्टि से जिसको हम कहेंगे कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग, प्रेरणा का प्रशिक्षण, कार्यात्मक प्रशिक्षण, फंक्शनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग, कुशलता का प्रशिक्षण ये देते हैं। और इसके ढेर सारे प्रशिक्षण वर्गों की वहाँ पर रचना की जाती है और लोग आते हैं, जाते हैं। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमारी और प्रशासन के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों को जो मैं कह रहा हूँ निश्चित रास आएगा, बिकॉज़ आई विविडली रिमेंबर दिस वाज़ अ पोएम वन्स कोटेड बाय एल.के. आडवाणी जी, and this is a poem which vividly brings about the relevance of institutions like Rambhau Margi Prabodhini that are into the capacity building of elected representatives. It's a poem, हिंदी में है, एक बड़े हास्य कवि थे हमारे शैल चतुर्वेदी। उन्होंने एक अपनी व्यंग्यात्मक कविता में लिखा था कि नए नए मंत्री बने एक सज्जन, जब पहली बार सरकारी कार में बैठे, रेड बीकन वाली कार, सरकारी कार में बैठे, तब उन्होंने ड्राइवर को कहा, आज कार मैं चलाऊंगा। ड्राइवर बेचारा डर का मारा विनम्रता से बोला, तो हुजूर मैं उतर जाऊंगा। मंत्री जी ने पूछा, भला क्यों? तो ड्राइवर ने कहा, क्योंकि महोदय ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल सकती।
तो कार को चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, लाइसेंस की जरूरत है। सरकार को चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जब जनता का समर्थन मिल गया, आप सरकार चला सकते हैं, ये धारणाएं बनी है। अभी इन धारणाओं के कारण जनतंत्र की विफलता रेखांकित होती है। और इसलिए जनतंत्र के बारे में, जैसे देयर इज वन वेरी रिनाउंड academic in the Kennedy School of Government, her name is Dr. Pippa Norris. She has come out with a theory some 10-15 years before, which is known as combined approach theory. उसमें उनका कहना है कि liberal democracy, although important, is not enough. It has to be complemented by some kind of an efficient statecraft. स्टेटक्राफ्ट की एफिशिएंसी जनप्रतिनिधियों पर निर्भर है। बिल्कुल। तो इसलिए एक एनलाइटेंड जनप्रतिनिधि बनाने की हमारी कोशिश है, जो न केवल किसी दल विशेष की, मगर मैं मानता हूं कि जनतंत्र की सेवा का एक दायरा है। सर, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, बखूबी सवालों का जवाब दिया, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं दैट आप जैसे लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स और साथ ही साथ एकेडमिक टर्न्ड politician, intellectual have come and graced our show. So we are very thankful to you, sir, for gracing the show here. This is all from Study IQ IAS today. Thank you for watching it. My name is Ashish. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।